نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام سورة نساء یہ قرآن پاک کی چوتھی آیت ہے، چوتھی صورت ہے، اور چوتھے پارے سے پانچویں پارے تک یہ صورت ہے۔ اس صورت کی ابتدا اس بات سے ہوتی ہے کہ اے لوگو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور پھر اس جان سے اس کا جوڑا پیدا کیا، اور پھر اس جوڑے سے بہت سے لوگوں کو پیدا کیا، تخلیق کیا، اور بہت سے مرد اور عورت جو جتنے بھی ہیں وہ سب اسی جوڑے سے تخلیق کیے گئے۔ تو یہ اس آیت سے اس بات کی ابتدا کی گئی ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے یہ بات کہ ایک مرد کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو، اور پھر ان کی بیوی حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر ان سے ہی ساری مخلوق، ساری انسانیت کو پیدا کیا گیا۔ تو اس سے یہ شاید ہمیں یہ پتہ چلتا ہے، اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اس صورت کے اندر انسان کی جو خاندانی زندگی ہے اس کے بارے میں بات کی جائے گی۔ اور اس صورت کا نام بھی سورہ نساء رکھا گیا ہے، وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس میں ایک تو عورتوں کا تذکرہ، عورتوں کے حقوق، ان کے مسائل کے بارے میں بہت زیادہ بات کی گئی ہے، اور اس میں یہ لفظ بہت زیادہ آیا ہے نساء، بلکہ پہلی آیت میں ہی آیا ہے وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو قرآن کریم کی جو چیپٹرز ہیں، جو اس کی صورتیں ہیں، ان کے جو نام ہوتے ہیں نا، یہ صورتوں کے عنوان نہیں ہوتے، یہ موضوع نہیں ہوتے، بلکہ یہ نام رکھے جاتے ہیں پہچان کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو نام میں اور موضوع میں فرق ہوتا ہے۔ جیسے کسی کتاب میں مصنف مختلف ابواب بندی کے مختلف اپنے باب بناتے ہیں، ابواب بندی کرتے ہیں، اور پھر ان بابوں کے نام رکھتے ہیں۔ جیسے آپ صحیح بخاری اٹھا لیں تو اس میں کتاب الایمان ہے سب سے پہلے، تو اس میں ایمان کے متعلق احادیث پہ بحث کی گئی ہے، احادیث بیان کی گئی ہیں۔ لیکن قرآن کریم کے جو چیپٹرز ہیں، اس کی جو صورتیں ہیں، وہ ان کے جو نام ہیں نا، وہ اس کے موضوع کو ظاہر نہیں کرتے۔ ضروری نہیں ہوتا کہ جو سورہ بقرہ ہے اس میں صرف بقرہ کے بارے میں ہی، بقرہ کا واقعہ ہی ذکر کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ طویل ترین صورت ہے، 2.5 پاروں پہ تقریباً مشتمل صورت ہے سورہ بقرہ، لیکن اس میں جو بقرہ یعنی گائے کا جو واقعہ ہے وہ تو صرف پہلے پارے میں آیا ہے، اور سورہ آل عمران میں سورہ آل عمران کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورہ نساء میں جہاں عورتوں کا ذکر ہے، عورتوں کے مسائل کا، وہاں پہ اس کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کا تذکرہ ہے۔ تو یہ صورتوں کے نام رکھے جاتے ہیں، یہ ان کے موضوع نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، یہ نام صرف ان کی پہچان کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اس صورت میں یعنی نساء کا مطلب ہے عورتیں، اور اس صورت کی 176 آیات ہیں اور 24 رکوع پہ مشتمل یہ صورت ہے، اور یہ مدنی صورت ہے۔ سورہ نساء کے جو اہم موضوعات ہیں، اب ہم ان کی طرف آتے ہیں۔ اس میں معاشرتی ہدایات دی گئی ہیں، اس میں عورتوں کے حقوق ہیں اور یتیموں کے حقوق ہیں۔ عورتوں اور یتیموں کے بارے میں کیا حقوق دیے گئے ہیں؟ سب سے پہلے عورتوں کے حقوق کے بارے میں دیکھ لیں کہ اب یہ عورتوں کے حقوق تو نہیں، بلکہ ہاں یہ بھی ایک قسم کا عورتوں کا ہی حق ہے۔ ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے مردوں کو، لیکن اس کے ساتھ شرط یہ لگائی گئی ہے کہ عدل کی صورت میں، یعنی جب تم عدل کر سکو تو 2، 3 یا 4 شادیاں تم کر سکتے ہو، لیکن عدل شرط ہے۔ تم ان کا جو نان نفقہ ہے، ان کے جو اخراجات ہیں، وہ سب کو برابر اگر دے سکتے ہو، برابر اٹھا سکتے ہو، تو تم ان کے ساتھ اجازت ہے کہ تم
तीन चार शादियां कर सकते हो। अगर तुम अगर तुम अदल ना कर सको, फवाहिदातुन, तो एक ही काफ़ी है, उसी पे गुजारा करो। बीवियों को उनका महर खुशी से अदा किया जाना चाहिए। ये आयत नंबर 4 में इसका तज़किरा मौजूद है। वरासत में औरतों को हिस्सा दिया गया और बाकायदा उसके कवानीन बताए गए जो अगली आयत में आ रहे हैं। औरतों को ज़बरदस्ती घरों में कैद ना रखो, ये आयत नंबर 19 में इसका तज़किरा मौजूद है कि ये आयत नंबर 19 जो है वो मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। आयत नंबर 19 है, एक मिनट ज़रा होल्ड कीजिए जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम अन तरिसुन निसाअ करहा वला तअदुलूहुन्ना लितज़हबू बिबअज़ि मा आतैतुमूहुन्ना इल्ला अन यअतीना बिफाहिशतिन मुबय्यिना वआशिरूहुन्ना बिमारूफ। इसका तर्जुमा ये है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं है कि तुम ज़बरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और ना ये हलाल है कि इन्हें तंग करके उस महर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम इन्हें दे चुके हो। अब देखें, ये इसमें यह बताया जा रहा है कि जो हक महर की रकम होती है वो महज औरत की मिल्कियत होती है, और मर्द कोई उसमें से हिस्सा ज़बरदस्ती लेना चाहे तो वो नहीं ले सकता। इस बिना पे उनको तंग करे कि वो चले, महर का मुतालबा तो वो ना करे वापसी का, लेकिन उनको तंग इतना करे कि वो मजबूर होके उससे कहें कि ठीक है, ये तुमने जो महर दिया था ये तुम रख लो। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। तो अहकामात की हम ज़्यादा तफसील में नहीं जाएंगे, बस सरसरी तौर पे इनको देख लेते हैं, क्योंकि इनमें डिटेल्स बहुत ज़्यादा होती हैं। बीवियों के साथ हुस्न सलूक का तज़किरा किया गया। तलाक की सूरत में जो महर है वो वापस ना लिया जाए, जो तुमने महर दिए हैं या जो तुमने तहाइफ दिए हैं, गिफ्ट्स दिए हैं अपनी बीवी को, जब तलाक दे दो तो उस सूरत में ये चीज़ें वापस लेने का हक नहीं है मर्द को। इसके बाद यतीमों के हकूक बयान किए गए। यतीमों का माल ना हक ना खाओ। यतीमों के अच्छे माल को अपने नाकिस माल से मत बदलो। यतीम के माल की हिफाजत करो जब तक कि वो समझदार हो जाएं। यतीम जो बच्चे हों, जब तक वो बालिग नहीं हो जाते, समझदार नहीं हो जाते, अपने माल के नफ़ा और नुकसान को समझने के काबिल नहीं हो जाते, तब तक तुम उनके माल की हिफाजत करो। उनकी परवरिश तुम्हारी जिम्मेदारी है। हाँ, उनकी परवरिश के दौरान जो तुम्हें ज़रूरत हो उसमें से कुछ जो है वो तुम रख सकते हो, अगर तुम तंग दस्त हो तो। जब ये यतीम समझदार हो जाए तो गवाहों की मौजूदगी में उनका माल उनको वापस करो। यतीमों को अपने बच्चों जैसा तस्वर करो। यतीमों का माल खाना अपने पेट में आग भरने के बराबर है। तो ये यतीमों के बारे में कुछ अहकामात थे। इसके बाद विरासत के अहकामात आए हैं, और ये बहुत ही तफसील के साथ इनको बयान किया गया है कुरान करीम में। इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। सिर्फ एक दो बातें वो ये हैं कि ये तो बहुत ही एक आम सा असूल है कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के बराबर होता है, ठीक है। यानी एक औरत का हिस्सा मर्द से आधा होता है, या आप यूं कह लें कि एक मर्द का हिस्सा दो औरतों के हिस्से के बराबर होता है, ठीक है। तो इसमें फिर मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई हैं, किस सूरत में किसको कितना हिस्सा मिलेगा, इसके डिटेल में हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। हाँ, एक बात जहन में रखने की है कि वरासत तकसीम उसका तरतीब क्या होती है। मैयत जब कोई आदमी फोत हो जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि उसके ज़िम्मे कर्ज कितना था, ठीक है। तो पहले उसका कर्ज उतारा जाता है, और फिर अगर उसने कोई वसीयत की है, उस वसीयत करने की इजाज़त दी गई है शरीयत में, और एक हद तक वसीयत करने की इजाज़त दी गई है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई आदमी मरते वक्त अपने सारे माल को किसी ट्रस्ट के नाम, दीन के खातिर, अल्लाह के लिए, किसी मदरसे में, किसी नेक काम में वक्फ करने का, या किसी बंदे को देने की वसीयत कर जाए। ऐसा जायज़ नहीं है। हाँ, एक हद तक वो अपने माल में से वसीयत कर सकता है, और अगर उसने वसीयत की हो, पहले कर्ज अदा किया जाएगा, फिर वो जो उसने वसीयत की थी उसको पूरा किया जाएगा, और फिर उसके बाद उसका माल जो है वो विरासत में तकसीम किया जाएगा। हमारे यहाँ जो बहुत बड़ा मसला है वो ये है कि
बेटियों को, बहनों को उनका हिस्सा नहीं दिया जाता। और वो ऐसा भी होता है कि जब तकसीम की बात आती है तो जो बहनें होती हैं वो कहती हैं जी कि हम अपना हिस्सा खुशी से अपने भाइयों को देती हैं, हम छोड़ती हैं, हम माफ़ करती हैं, हम अपना हिस्सा नहीं लेती। ये जायज़ तो है शरन, लेकिन जहाँ पे ये रिवाज बन चुका हो कि बेटियों को, बहनों को उनका हिस्सा ना दिया जा रहा हो, वहाँ पे मैं ये समझता हूँ कि उनको अपना हिस्सा लेना चाहिए, लाजमन लेना चाहिए। बेटियों को, बहनों को अपना हिस्सा लाजमन लेना चाहिए। हाँ, लेने के बाद, एक दफ़ा वसूल करने के बाद, एक दफ़ा वरासत अपने कब्जे में करने के बाद, फिर बेशक अगर उन्होंने अपने भाइयों को देना है, वापस करना है तो वापस कर दें, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर लें, ताकि लोगों को पता चले, ताकि इर्द गिर्द के लोगों को भी पता चले कि बेटियों को, बहनों को उनका हिस्सा दिया जाना चाहिए। तो ये शरीयत पर अमल कराने के लिए उनको हिस्सा लाजमन लेना चाहिए। ये लाजमन, ये मैं अपनी ये मैं बात कर रहा हूँ, ये शरई तौर पे लाजिम नहीं है। ठीक है, अगर आप लिए बगैर उनको देना चाहें, अपने भाइयों को कहें जी कि ठीक है, मैं ये हिस्सा नहीं लेती, या मैं, ये मेरा हिस्सा है, मैं आपको तोहफा देती हूँ, मैं आपको हदिया देती हूँ, ये आप रख लें, तो ऐसा हो सकता है। लेकिन ज़रूरत इस बात की है आजकल के दौर में कि हिस्सा लिया जाए, लाजमन लिया जाए, और उसको बाद में फिर अगर ज़रूरत पड़े तो वापस कर दिया जाए। तो इसके बाद, वरासत के अहकामात के बाद, फिर बदकारी की अजियतनाक सज़ा का जिक्र है आयत नंबर 15 और 16 में। उसके बाद तौबा का जिक्र है कि तौबा के बारे में ये कहा गया है कि आइन मौत के वक्त तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो तौबा के लिए ना एक ख़ास वक्त मुकर्रर होता है। आप जानते हैं, आपने सुना होगा कि जब सूरज मगरिब से तुलू होगा तो उस वक्त तौबा का दरवाज़ा बंद हो जाएगा, उसके बाद कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। और फिर ये भी है कि जब इंसान की मौत का फरिश्ता उसके सामने आ जाता है तो उसके बाद उसकी तौबा कबूल नहीं की जाती। तो ये आपने, ये कुरान करीम में भी ये जिक्र है इस वाक़े का कि फ़िरौन जब पानी में डूबने लगा तो उसने ऐलान किया, वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, आमनतु बिरब्बि मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पे ईमान लाता हूँ। तो उसे ये कहा गया कि अब ईमान लाते हो, जब तुम्हें नज़र आ रहा है कि तुम मौत के मुंह में जा रहे हो, तो अब कोई तौबा कबूल नहीं की जाएगी। तो ये असूल बयान किया गया कि आइन मौत के वक्त अगर कोई तौबा करेगा तो उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, उससे पहले पहले तौबा का दरवाज़ा हर वक्त खुला रहता है। ठीक है, अल्लाह ताला नादानी में गुनाह करके फिर फौरी तौर पर सच्ची तौबा करने वालों की तौबा कबूल कर लेते हैं। लेकिन तौबा क्या होता है? तौबा क्या होता है? गुनाह करके कानों को हाथ लगा लेना, या सिर्फ जुबान से बोल देना कि या अल्लाह मेरी तौबा, या अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, इससे तौबा हो जाती है? नहीं, सिर्फ इससे तौबा नहीं होती, तौबा की कुछ शराइत होती हैं। तो आइए देखते हैं तौबा की क्या क्या शराइत होती हैं। सबसे पहली तो बात यह है कि जो गुनाह हमसे सरजद हुआ, उस पर दिल से हमें नदामत हो, हमें अफसोस हो, हमें शर्मिंदगी हो कि ये गुनाह हमसे सरजद हुआ, अल्लाह की नाफरमानी सरजद हो गई। उसके बाद उसको, उस गुनाह को, उस नाफरमानी को छोड़ दिया जाए। ठीक है, उसको छोड़ भी दिया जाए, नदामत के बाद उसको छोड़ दिया जाए, और फिर दोबारा ना करने का अज़म किया जाए, ये इरादा किया जाए, ये अल्लाह ताला से ये पुख्ता अज़म लिया जाए, अल्लाह के सामने इरादा किया जाए कि दोबारा मैं ये गुनाह नहीं करूँगा। ठीक है, और फिर अगर वो गुनाह, वो नाफरमानी ऐसी थी कि जो जिसमें किसी का हक मारा गया था, किसी का माल गसब कर लिया था, किसी की विरासत हड़प कर ली थी, किसी की ज़मीन अपने कब्जे में कर ली थी, किसी के पैसे दबा लिए थे, कुछ भी, कोई भी हक किसी का मारा था, किसी की गीबत की थी। ये बहुत अहम बात है कि गीबत करना भी हकूकुल इबाद में से है। अगर किसी की गीबत की थी, ठीक है, तो भी, तो ऐसी सूरत में उस हकूकुल इबाद में जो ज्यादती की है उसकी तलाफी भी, जिस जिस शख्स से ज्यादती की है उससे जाके माफ़ी भी मांगे, जो माल हड़प किया है वो वापस भी करें।
जो ज़मीन अपने कब्जे में रखी हुई है उसको वापस भी करें, जो वरासत अपने कब्जे में रखी हुई है उसको वापस भी करें। ऐसा नहीं है कि माल भी अपने पास रखे रखें और फिर नदामत भी करें और ये भी कहें कि आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन वो माल ना छोड़ें, वो हक ना छोड़ें। जिसकी गीबत की है उससे जाके माफ़ी ना मांगें, उसको जाके ये ना बताएं कि मैंने तुम्हारी गीबत की थी, तुम मुझे माफ़ कर दो। तो इस सूरत में ये तौबा कबूल नहीं होती। तो ये सच्ची तौबा की ये चार शराइत हैं जिससे तौबा कबूल होती है। और ये ज़रूरी नहीं, ये तौबा के लिए इंसान को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि अभी कुछ अरसा पहले ही तो अल्लाह ताला से ये वादा किया था, ये अज़म किया था कि गुनाह नहीं करूँगा, अब दोबारा गुनाह हो गया। इंसान बाज़ दफ़ा गुनाहों की दलदल में फंस जाता है और उससे गुनाह छूटता नहीं है आसानी से। तो बाज़ दफ़ा शैतान इंसान के दिल में ये बात डाल देता है कि बार बार अल्लाह के पास क्या मुंह लेके जाऊं, क्या तौबा करूं, अल्लाह ताला भी क्या कहेंगे कि ये कैसा बंदा है, हर रोज़ गुनाह करता है और फिर आके तौबा कर लेता है। तो याद रखें, अल्लाह ताला बंदे की तौबा कबूल करने से कभी नहीं थकते। आप रोज़ाना अल्लाह ताला से तौबा करें, लेकिन सच्ची तौबा करें। ये आपके दिल को भी पता हो कि मैं सच्ची तौबा कर रहा हूँ। आप सच्ची तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें, फिर गुनाह हो जाए फिर तौबा करें। अल्लाह ताला को इससे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। अल्लाह ताला खुश होते हैं कि जब बंदा तौबा करता है और अल्लाह की तरफ रुजू करता है और अल्लाह से ये अहद करता है कि मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा। तो आप तौबा करते रहेंगे, लेकिन शर्त यह है कि वो सच्ची तौबा हो, वो धोखा ना हो, वो अपने दिल को धोखा देने वाली बात ना हो, वो अल्लाह को धोखा देने वाली बात ना हो, बल्कि उस वक्त जब आप तौबा कर रहे हैं वो सच्ची तौबा हो, वो सच्चा अज़म हो कि आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। दोबारा गुनाह हो जाता है, दोबारा तौबा करें तो एक वक्त ऐसा आएगा अल्लाह ताला आपको उस गुनाह से छुटकारा अता कर देंगे। तौबा के बाद निकाह की हुर्मत का बयान किया गया कि किन किन औरतों से निकाह करना हराम है। तो उसमें कौन कौन सी औरतें हैं, ये आयत नंबर 22 और 22, 23, 24 में है। सुतेली माँ से निकाह करना, और अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी बहन से, बहू से, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, सुतेली बेटी, रज़ाई माँ, रज़ाई बहन, सास, ये औरतें मुस्तकिल तौर पे महरम हैं। यानी ये किसी सूरत भी गैर महरम, यानी इससे इनसे निकाह करना जायज़ नहीं हो सकता। हाँ, इसमें एक एक्सेप्शन है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। और ये जो है ना बीवी की बहन, आपकी जो बीवी की बहन है उससे निकाह करना भी जायज़ नहीं है। यानी ये जायज़ नहीं है कि कोई आदमी दो बहनों को एक साथ अपने निकाह में रखे, और वो औरत जो किसी और के निकाह में है, जो किसी और की बीवी है, उससे निकाह करना भी जायज़ नहीं है। हाँ, ये आर्जी महरम औरतें हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे बीवी फौत हो जाती है तो उसके बाद उसकी बहन से, वो जो बीवी के होते हुए उससे निकाह करना, उसकी बहन से निकाह करना जायज़ नहीं था, लेकिन अब बीवी के फौत होने के बाद उससे निकाह किया जा सकता है, अब वो गैर महरम हो गई। ठीक है। तो इसी तरह जो कोई भी किसी भी दूसरे शख्स की बीवी है, तो शोहर के फौत होने के बाद वो जो बीवी जो पहले जिससे निकाह करना जायज़ नहीं था, अब उससे निकाह करना जायज़ हो जाएगा। तो ये आर्जी महरम औरतें हैं। तो इसमें ये जो सौतेली बेटी है, ये भी इसमें भी एक शर्त ये है कि सौतेली बेटी महरम है अगर इसकी माँ से अज़वाजी तल्लुकात कायम हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है, अभी नहीं हुआ, तो वो भी नामहरम है। तो ये निकाह जिन औरतों से हराम है उनके बारे में कुछ तज़किरा था। माल और जान की हुर्मत, इस ये आयत नंबर 29 और 30 इसमें बयान किया गया है कि एक मुसलमान का माल और उसकी जान, ये हुर्मत का क्या मतलब होता है आप जानते हैं? हुर्मत, ये हुर्मत वाले महीने हैं जी, माल और जान की हुर्मत है, ये मस्जिद हराम है। ठीक है, ये हरम है। तो इस लफ्ज़ का क्या मतलब है, ये याद रखें। इस लफ्ज़ का ये मोहतरम से निकला है, मोहतरम, एहतराम वाला। ठीक है, माल और जान की हुर्मत का मतलब माल और जान एहतराम के लायक हैं, उनको नुकसान ना पहुंचाया जाए।
आयत नंबर 29 और 30 में ये बात आई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अम्वालकुम बैनकुम बिलबातिल, ए लोगो अपने माल नाहक तरीके से, एक दूसरे के माल नाहक तरीके से हड़प ना करो। जो जायज़ तरीके हैं किसी दूसरे का माल लेने के, उन जायज़ तरीकों से माल लो, किसी भी नाहक तरीके से उसका माल तुम हड़प ना करो। ऐसा ना करो कि तुम चोरी करो उसका माल, तुम ऐसा ना करो कि बगैर इजाज़त के उसका माल उठा लो या खा जाओ। किसी दुकानदार के पास जाओ, उसकी इजाज़त के बगैर उसका माल चखना शुरू कर दो, उसका फ्रूट खाना शुरू कर दो। ऐसा ना करो। किसी के बाग में जाओ, उसकी इजाज़त के बगैर उससे उसका जो माल है वो तुम उसके जो दरख्त पे फल लगे हैं वो तुम खाना शुरू कर दो। ऐसा ना करो। तुम किसी को धोखा दे के उसका माल हड़प ना करो। तुम सूद, जुए के जरिए से उसका माल हड़प ना करो। किसी भी नाजायज तरीके से माल उसका तुम ना खाओ। और जानू, इसी तरह जानू की भी हुर्मत है, एक दूसरे की जान भी मुहतरम है। वला तख्तुलु अनफुसकुम, और तुम तुम्हारी अपनी जान भी, हत्ता कि इंसान की जो अपनी जान है उसको ये भी हक नहीं है कि वो अपनी जान को भी हलाक करे। यानी खुदकुशी करना भी जायज़ नहीं है, ये भी हराम है। ये इंसान की जो अपनी जान है, मेरी जो अपनी जान है, ये भी मेरी मलकियत नहीं है, ये अल्लाह की मलकियत है। मैं ये हक नहीं रखता कि मैं अपनी जान को ज़ायल कर दूं। ठीक है। बड़े गुनाहों से इज्तनाब छोटे गुनाहों से माफ़ी का ज़रिया बन जाता है। इन तजतनिबू कबाइरा मा तुनहौना अन्हु, तुम अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहोगे, कबीरा गुनाहों से बचते रहोगे, तो अल्लाह ताला से ये कभी उम्मीद है, नुकफ़िर अन्कुम सय्यातिकुम, अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि अगर तुम बचते रहोगे बड़े गुनाहों से, हम तुम्हारे छोटी छोटी गलतियाँ, छोटी छोटी खताएं, छोटे छोटे गुनाह माफ़ कर देंगे। ये इस आयत नंबर 31 में बयान किया गया है। इसके बाद हसद से रोका गया है, हकदार को हक देने की बात है। और ये बात बताई गई है कि अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, मर्द जो है वो औरतों पे उसको फोकियत दी गई है। यानी एक ख़ानदान का जो सरबराह है वो किसी ना किसी को तो बनना ही था। ख़ानदान की जिम्मेदारी किसी न किसी ने तो उठानी थी। तो ये मर्द को जिम्मेदारी दी गई है कि वो अपने अपने बीवी की, अपने बच्चों की, अपने कुंबे और कबीले की देखभाल करे और उनकी जिम्मेदारी उठाए। और नाफरमान बीवियों की इस्लाह करने का कहा गया आयत नंबर 34 में। और फिर तहारत के कुछ मसाइल हैं, ये माशरती हिदायत थी जो सूरह निसा में बयान की गई। उसके बाद अहले किताब के जराइम, ये कुछ जराइम, उनका तज़किरा सूरह बकरा में भी आया, सूरह आल इमरान में भी आया, और सूरह निसा में भी अब यहाँ आ रहा है कि इनके क्या क्या जराइम थे। ये जानबूझकर गुमराही इख्तियार करते थे और दूसरों को भी गुमराह करने की कोशिश में लगे रहते थे हर वक्त, और नजेबा कलिमात कहते थे। ये आयत नंबर 46 में है कि मिनल्लज़ीना हादू युहर्रिफून अल-कलिमा अन मवादिअही व यक़ूलून समिअना व असैना। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आपकी मजलिस में जब आते थे ना, तो इनकी कोशिश होती थी, ये हर वक्त शरारत में रहते थे। तो ये एक और मौके पे ये भी कहा गया कि ये जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसे कहते ना कि आप हमारी तरफ मुतवज्जे हों, हमारी तरफ तवज्जो करें या हमारी बात सुने, तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते थे, राइना, राइना। ठीक है। राइना का मतलब होता है हमारी तरफ तवज्जो कीजिए, हमारी तरफ हमारी बात सुनिए। तो ये उसको ज़रा लंबा करके लफ्ज़ को बिगाड़ के बोलते थे और यूं बोलते थे, राइना, ए हमारे चरवाहे। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने की कोशिश करते थे। तो अल्लाह ताला ने सहाबा को मना कर दिया था कि आप सहाबा जो हैं, तुम यानी तुम भी इन लोगों की तरह तो ये राइना लफ्ज़ ही इस्तेमाल ना करो, ताकि इससे कोई गलत फहमी पैदा ना हो। तुम उन्जुरना कह दिया करो, ला तक़ूलू राइना वक़ूल उन्जुरना, तुम उन्जुरना कह दिया करो कि हमारी तरफ नज़र कीजिए। तो ये अल्लाह ताला की तरफ झूठी बातें मंसूब करते थे। ये अहले किताब का ये शेवा था कि अल्लाह अपनी तरफ से बातें लिखते और ये कहते कि ये बात अल्लाह की तरफ से है, और मुसलमानों से हसद करते। इसके बाद इस्लाम के सियासी असूल बयान किए गए।
और तीन लोगों की तीन लोगों की इताअत करने की का हुक्म दिया गया। तो इस्लाम के सियासी असूल आगे आएंगे, उसकी तफसील हम वहाँ पे देखते हैं। शिर्क के बारे में ये कहा गया है कि शिर्क नाकाबिले मुआफ़ी जुर्म है। इन्नल्लाह ला यगफिरु अन युशरक बिही व यगफिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को कभी भी माफ़ नहीं करेंगे, उसके अलावा अल्लाह ताला जिस गुनाह को चाहेंगे माफ़ कर देंगे, जिस गुनाह को चाहेंगे नहीं करेंगे। लेकिन शिर्क को किसी सूरत भी माफ़ नहीं किया जाएगा। तो शिर्क किसे कहते हैं? शिर्क कहते हैं अल्लाह ताला की ज़ात में अल्लाह ताला के साथ किसी और को शरीक ठहराने को। यानी हम जैसे अल्लाह ताला की ज़ात है ना, हम किसी और ज़ात को ये समझना शुरू कर दें कि वो भी अल्लाह की तरह ही है, ठीक है, वो भी अल्लाह ही की तरह है, किसी और ज़ात को ये समझना शुरू कर दें, तो इसे कहा जाता है शिर्क। तो शिर्क की कुछ किस्में हैं। आइए देखते हैं शिर्क की कौन कौन सी किस्में हैं। सबसे पहले अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क। ज़ात में शिर्क से क्या मुराद है कि इस दुनिया में खुदा नाम की एक ही ज़ात है। अगर कोई ये कहे कि अल्लाह एक नहीं अल्लाह दो हैं, तो ये अल्लाह ताला की ज़ात में शिर्क हो जाएगा, ठीक है। कोई ये कहे कि ये है ना, कुरान करीम में आया है कि वो कहते हैं कि ये इला दो हैं, ठीक है, तो ये दो इला नहीं हो सकते। एक है अस्मा में शिर्क, अल्लाह ताला के नामों में शिर्क। जो अल्लाह ताला के नाम हैं वो नाम किसी और के रखना, ये अल्लाह ताला के नामों में शिरक है। अल्लाह ताला का नाम क्या है? अल्लाह। किसी का और का नाम अल्लाह नहीं रख सकते, ठीक है। और अर्रहमान, ये एक अल्लाह ताला का एक ही ज़ाती नाम है अल्लाह, और एक और नाम को ज़ाती नाम कहा जाता है, वो अर्रहमान है, ठीक है। कुछ उलमा इस हद यहाँ इस तरफ गए हैं, उनकी ये राय है कि रहमान भी अल्लाह ताला के ज़ाती नामों में से है। तो सिर्फ रहमान अर्रहमान ये नाम रखना ये सही नहीं है, बल्कि आब्दुर रहमान नाम रखा जा सकता है। इसके बाद अल्लाह ताला के अफ़आल में शिरक। अल्लाह ताला के जो अफ़आल हैं उनमें शिरक, मसलन अल्लाह ताला इस कायनात के खालिक हैं। अगर हम ये समझने लगें कि जैसे इस कायनात का खालिक अल्लाह के अलावा कोई और भी है, तो ये अल्लाह ताला के फ़ेल में शिरक हो जाएगा। अल्लाह ताला इस कायनात के मुदब्बिर हैं, मुनज़्ज़म हैं, इस कायनात को चलाने वाले हैं, इस कायनात का इंतज़ाम करने वाले हैं। अगर हम ये समझें कि कोई और ज़ात, कोई और चीज़, कोई और हस्ती ऐसी भी है जो अल्लाह के अलावा इस कायनात को चलाने वाली है, तो ये अल्लाह ताला के अफ़ाल में शिरक हो जाएगा। एक है अल्लाह ताला के अहकामात में शिरक। यानी हम हम अल्लाह ताला का हुक्म मानने के जिस तरह मुकल्लफ हैं, इस तरह हम किसी और का हुक्म मानना शुरू कर दें, तो ये अल्लाह ताला के ये अहकाम में अल्लाह का शिरक हो जाएगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे कुरान में कहा गया कि अराअयता मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। क्या तुमने देखा उस शख्स को जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना खुदा बना लिया? तो ख्वाहिशात को इंसान कैसे खुदा बनाता है? उसका हुक्म मान के, अपनी ख्वाहिशात की पैरवी करके, अपनी ख्वाहिशात के ताबे रह के वो अपनी ख्वाहिशात को खुदा बनाता है। तो ये अहकाम में शिरक है। इसी तरह इबादत में शिरक। तो जिस तरह अल्लाह की इबादत करनी चाहिए, इबादत करने के क्या क्या तरीके हैं, किसी के आगे झुकना, उसके आगे सजदा करना, उसके आगे रुकू करना, उसके आगे क़याम करना, उसके सर झुकाना, उसके आगे नजर उसके लिए मन्नत मानना, उसके लिए नजर न्याज देना, उसको पुकारना, किसी से दुआ मांगना भी याद रखें कि ये इबादत है। दुआ मांगना इबादत है। अद्दुआ मुख्खुल इबादा, ये एक हदीस में आता है कि दुआ तो इबादत का मग़ज़ है, ठीक है। अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ तो आइन इबादत है, ठीक है। तो किसी से दुआ मांगना, तो ये भी इबादत है। तो इबादत, ये सब अफ़ाल जो मैंने ज़िक्र किए, ये अल्लाह के अलावा किसी और के सामने करना, ये भी से अल्लाह के साथ शरीक ठहराने के मुतरादिफ है। और सिफ़ात में शिरक। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला जैसे देखते हैं, अगर हम ये कहें कि फ़लाँ ज़ात जो है
وہ بھی ایسے ہی دیکھتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیسے دیکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر چیز کو دیکھنے والے ہیں۔ تو اگر ہم یہ کہیں کہ فلاں ذات جو ہے، فلاں فرشتہ یا فلاں جن یا فلاں انسان، کوئی بھی انسان ہو، چاہے وہ نبی ہو چاہے وہ ولی ہو، وہ بھی بالکل ایسے ہی دیکھنے والے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت میں شرک ہو جائے گا۔ ہم کسی ذات کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے ہیں۔ اور جیسے اللہ تعالیٰ سننے والے ہیں، اس طرح کوئی اور بھی سنتا ہے بالکل ایسے ہی جیسے اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی سننے کی صفت میں شرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی صفات ہیں، ان صفات، وہ اس طرح کی بالکل اس لیول کی صفات کسی اور کے اندر تلاش کرنا، کسی اور کے اندر سمجھنا، یہ اس کی صفات میں شرک ہے۔ تو یہ شرک کو میں نے تھوڑا ایکسپلین کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ شرک ایسا گناہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کریں گے، کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ تو اس لیے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کہیں ہم ناسمجھی میں ہی شرک میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ تو یہ ایک اور اسلام کے سیاسی اصولوں کا بیان کیا گیا ہے۔ اسلام کے سیاسی اصول کون سے ہیں؟ ان اللہ یأمر بالعدل، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے اہل لوگوں کے سپرد کرو۔ تو اس میں سب سے پہلا سیاسی اصول یہ بنتا ہے کہ جو آدمی جس عہدے کا اہل ہو، تم اس کو وہ عہدہ دو۔ اگر کسی یوسی، یہ اب میں آپ کو موجودہ حالات کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اگر کسی یوسی کا چیئرمین آپ نے منتخب کرنا ہے، تو جو سب سے اہل ترین انسان ہے اس کو منتخب کرو۔ اور ہم منتخب کیسے کرتے ہیں؟ ہم منتخب ووٹ کے ذریعے کرتے ہیں۔ تو اہل آدمی کو، اہل جو عہدے کا اہل ہو، اسے ووٹ دینا، یہ ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے۔ تم سے کسی طرح بھی رائے مانگی جا سکتی ہے، ووٹ کے ذریعے مانگی جا سکتی ہے، کسی اور طرح مانگی جا سکتی ہے، تو جب رائے مانگی جائے تو اہل کو ووٹ دو۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتیں اپنے اہل لوگوں کے حوالے کرو۔ اور پھر جب کسی عہدے پہ پہنچ جاؤ، تو پھر جب فیصلہ کرنا پڑے تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امانت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ عدل۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ریاست اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، یہ جو ریاست ہے، یہ بھی اپنے قوانین بنانے میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی۔ یہ تیسرا اصول ہے۔ اور چوتھا اصول یہ ہے کہ یہ ریاست کی اطاعت، یہ جو عوام ہے، یہ اس ریاست کی اطاعت کرے گی، لیکن یہ اطاعت غیر مشروط نہیں ہوگی۔ ٹھیک ہے؟ ابھی میٹنگ ختم ہو رہی ہے، آپ میٹنگ کو دوبارہ جوائن کریں، اس کے بعد ہم آگے بات کرتے ہیں۔ جی، تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ ریاست جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مطلق اطاعت کرے گی، غیر مشروط اطاعت کرے گی۔ کوئی شرط نہیں ہے، کسی صورت ریاست کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت سے ہٹ کے کوئی قانون سازی کرے۔ ٹھیک ہے؟ یہ جو ریاست، یہ میں آپ کو اپنے پاس سے باتیں نہیں بتا رہا، یہ ان آیات میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تمہارے اندر سربراہ بنا دیے جائیں، جو اول الامر ہوں۔ اول الامر کون ہوتے ہیں؟ وہ لوگ جو حکم دینے والے ہوں، وہ لوگ جو صاحب اقتدار ہوں، ان کی اطاعت کرو۔ یہ عوام کو حکم دیا جا رہا ہے نا، ان کی اطاعت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اب یہ جو لوگ ہیں، جو اقتدار میں ہیں، وہ بھی تو لوگوں میں آتے ہیں نا۔ یا ایھا الذین آمنو، وہ بھی تو ایمان والوں میں آتے ہیں۔ تو ان سمیت سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ٹھیک ہے؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں سے عوام ہیں، وہ ان کی اطاعت کریں جو صاحب اقتدار ہیں۔ ٹھیک ہے؟ یعنی جو ریاست ہے اس کی اطاعت کریں، جو حکومت ہے، جو سرکار ہے، اس کی اطاعت کریں۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تمہیں اپنی ریاست سے کوئی اختلاف ہو جائے کسی بات میں، تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو اب ریاست کی اطاعت، عوام جو ریاست کی اطاعت کرے گی نا، یہ غیر مشروط نہیں ہے۔ اگر ریاست اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابند رہتی ہے،
تو عوام کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ، عوام کا یہ فرض ہے، صرف ذمہ داری نہیں بلکہ یہ فرض ہے، لازم ہے کہ وہ ریاست کی اطاعت کرے۔ لیکن اگر ریاست اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کرتی ہے تو عوام بھی ریاست کے ساتھ بغاوت کرنے میں حق بجانب ہے، عوام بھی یہ کوشش کرنے میں حق بجانب ہے کہ وہ اس ریاست کو اللہ اور اس کے رسول اس کے رسول کی فرما بردار بنائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسلام کے سیاسی اصولوں کو اس میں بیان کیا گیا ہے، یعنی قرآن نے سیاست کو بھی ڈسکس کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ آیت نمبر 58 اور 59 میں یہ بیان کیا گیا۔ تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی معصیت میں، خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا حکم دے تو تم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اولو الامر ہیں ان کا مسلمان ہونا ضروری ہے۔ یہ جو ملک کا، ریاست کا جو بھی سربراہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مسلمان ہو۔ اسلامی ریاست کا سربراہ غیر مسلم نہیں ہو سکتا۔ تو ایک اور آیت ہے اور یہ بہت اہم آیت ہے، آیت نمبر 64، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم فلا وربک لا یؤمنون۔ یہ دیکھیں کتنی تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بات کر رہے ہیں، فلا تو نہیں، وربک اور تمہارے رب کی قسم، لا نہیں، یؤمنون وہ ایمان لائیں گے، اور نہیں تمہارے رب کی قسم وہ نہیں ایمان والے ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے آپس کے اختلافات میں، اپنے آپس کے جو مسائل ہیں ان میں اے نبی آپ صلی اللہ، آپ کو وہ حاکم نہ بنا لیں، آپ کو وہ فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں۔ تو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے جو آپس کے مسائل ہوتے ہیں کسی بھی طرح کے، جو مسائل یہاں پہ آج سورہ نساء میں ذکر کیے گئے، جو خاندانی زندگی کے مسائل ہوتے ہیں اور جو وراثت کے مسائل ہیں، جو نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، ان میں ہمارا طریقہ کار کیا ہے؟ ہمیں جب کوئی مسئلہ پیش آتا ہے تو ہم کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کیا ہم اللہ اور اس کے رسول کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا ہم کسی اور کی طرف رجوع کرتے ہیں، یا اپنے نفس کی خواہشات کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، موت کے بارے میں ذکر ہے کہ موت جو ہے وہ آنا برحق ہے، ہر ذی روح کو موت آئے گی، کوئی بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ تم اگر شیشے کے تابوت کے اندر بھی بند ہو جاؤ تو جو وقت مقرر ہے اس وقت موت آ کر رہے گی۔ اگر تم آسمان پہ چڑھ جاؤ، ستاروں پہ جا کے چھپ جاؤ، جہاں بھی چلے جاؤ، موت نے جب آنا ہے تب آ کر ہی رہے گی۔ کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرنے کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی بڑا گناہ اسے کہا گیا ہے، اور اتنی سخت سزا اس کے لیے بتائی گئی ہے کہ جو آدمی کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جہنم، جو کوئی کسی انسان، کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس کا ٹھکانہ، اس کی جزا جہنم ہے، خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ ایمان اور اسلام میں فرق اور ایمان کے درجات، تو یہ آپ کو پتہ ہے کہ ایمان اور اسلام میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ایمان اور اسلام میں کچھ ایک فرق ہوتا ہے۔ ایمان کہتے ہیں، ایمان دل کی کیفیت کا نام ہے، ٹھیک ہے، ایمان عقیدے کا نام ہے۔ اگر آپ کو ایمان کا مطلب سمجھنا ہو تو وہ ہماری جو سیریز ہے 5 منٹس کے درس کی، اس پہ میں نے عقیدے کے موضوع پہ جو بات کی ہے اس کو آپ دیکھ لیں، 5 منٹ میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ ایمان یا عقیدہ کیا ہوتا ہے۔ تو ایمان جو ہے نا وہ سمپل سی بات یہ ہے کہ دل کی کیفیت کو کہتے ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ظاہری اعمال کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب نماز پڑھنا ایمان ہے یا اسلام ہے؟ نماز پڑھنا کیا ہوگا؟ ذرا چیٹ میں مجھے جواب دے دیں تاکہ پتہ بھی چل جائے کہ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی۔ ایمان، نماز پڑھنا ایمان ہے یا اسلام ہے؟ اسلام ہے، بالکل ٹھیک۔ اچھا،
ख़त्म नबूवत को मानना ये ईमान है या इस्लाम है? इस ईमान है। ख़त्म नबूवत को मानना ईमान है। ज़कात देना इस्लाम है। बिल्कुल ठीक है। तो ईमान दिल की कैफियत को कहते हैं, और इस्लाम जो है वो ज़ाहिरी आमाल को कहते हैं। तो जो अल्लाह पर ईमान, किताबों पर ईमान, फरिश्तों पर ईमान, रसूलों पर ईमान, आखिरत पर ईमान, ठीक है, ये सब चीज़ें दिल से ताल्लुक़ रखती हैं। और इस्लाम जो है वो है कलमा पढ़ना। हम जुबान से कलमा पढ़ते हैं तो मुसलमान होते हैं, ठीक है। इसमें दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। इकरार बिल लिसान व तस्दीक बिल कल्ब। जुबान से इकरार और दिल से तस्दीक, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। तो तब बंदा मुसलमान होता है। और फिर उसके बाद वो नमाज अदा करता है, उसके बाद वो ज़कात अदा करता है, उसके बाद वो रोज़े रखता है रमज़ान के, और अगर इस्तात हो तो हज करता है। तो ये है। तो इससे हमें पता चलता है कि ये मुसलमान है, ठीक है। एक बंदा चाहे वो अल्लाह पर ईमान रखता हो, रसूलों पर ईमान रखता हो, ईमान के जितने भी वो तकाजे हैं वो पूरे करता हो, लेकिन ना वो जुबान से कलमा पढ़े, ना वो नमाज अदा करे, ना वो रोज़े रखे, ना वो हज करे, ना वो ज़कात अदा करे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है? हमें नहीं पता चल सकता, ठीक है। और आजकल के दौर में ये बिल्कुल भी पता नहीं चल सकता कि, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादा गैर मुस्लिम तो नहीं है, लेकिन कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है जिन इलाकों में है, तो उनका एक क्रिश्चियंस का एक लड़का और मुसलमानों का एक लड़का आपके सामने हूँ, आपके साथ आपके स्कूल में पढ़ रहे हूँ, तो कैसे महसूस करेंगे आपके वो, अगर दोनों के नाम भी आम हो, ऐसा नाम ना हो कि वाज़े पता चल जाए वो क्रिश्चियन है, ठीक है। क्योंकि आजकल ये जो क्रिश्चियन हैं ये तो मुसलमानों जैसे नाम रखते हैं, ठीक है। इनका नाम होता है यूसुफ, नाम होता है मुश्ताक, नाम होता है इसहाक, नाम होता है। तो ये तो इनके अंबिया भी हैं, इस तरह के नाम भी रखते हैं। तो कैसे पता चलेगा? मुसलमान भी अगर नमाज ना पढ़े और क्रिश्चियन भी नमाज ना पढ़े, ठीक है, अगर मुसलमान भी रमज़ान के रोज़े ना रखे और क्रिश्चियन भी रमज़ान, वो तो रखता ही नहीं है, उस पर तो फ़र्ज ही नहीं है, और मुसलमान भी ना रखे, तो फ़र्क कैसे पता चलेगा? फर्क नहीं पता चल सकता। बात समझ रहे हैं ना? तो इस्लाम इस दुनिया के लिए, दुनिया की ज़िंदगी में इस्लाम का होना ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। ये जो ज़ाहिरी आमाल हैं इनकी बुनियाद पे देखा जाता है कि कौन बंदा मुसलमान है या नहीं है। अच्छा, अब एक और भी बात है कि बंदा मुनाफिक भी तो हो सकता है, ठीक है। ज़रूरी तो नहीं उसके अंदर जो नमाज पढ़ रहा हो उसके दिल में ईमान भी हो सकता है कि कोई बंदा मुनाफिक हो, कोई बंदा किसी किसी काफिर मुल्क से आया हो, कोई इंडिया से, या हमारे जो जो हम हमसे मिलते जुलते हैं, यानी जिनकी शक्लें वो आ जाए और हमारे मस्जिदों में आके नमाज पढ़ना शुरू कर दे, और रमज़ान के रोज़े भी रखे, और हाथ में इतनी लंबी तस्बीह भी पकड़ी हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो मुसलमान है? उसके दिल में ईमान है या नहीं है? हमें नहीं पता चल सकता, ठीक है। तो इसी वजह से, यही वजह है कि इस दुनिया में मुनाफिक को भी मुसलमान ही तस्वुर किया जाता है। ये जो शरीयत इस्लामी है, ये मुनाफिक को भी मुसलमान ही समझेगी। उसके साथ मुसलमान जैसा ही रवैया रखा जाएगा। उसका वो जब मरेगा तो उसका जनाजा पढ़ाया जाएगा, वो उसको उसके साथ निकाह भी क्या पता हो जाए, क्योंकि हमें नज़र थोड़ा ही आ रहा है कि वो मुनाफिक है, ठीक है। तो उसके साथ वरासत के ताल्लुकात और वरासत की तकसीम और जितने भी इस्लाम के मामलात होते हैं वो सारे उसके साथ किए जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए कि आखिरत का जो हिसाब किताब है वो इस्लाम की बुनियाद पे नहीं, ईमान की बुनियाद पे होता है। वहाँ पे ये परखा जाएगा कि दुनिया में ये तो बड़ा नमाजी और परहेजी था, बड़ा रोज़ेदार था, लेकिन इसके दिल के अंदर ईमान कितना सा था, ईमान था भी या नहीं, सिरे से मौजूद भी था या नहीं। तो अगर ईमान था तो ये जो इस्लाम के जितने भी आमाल हैं ये उसके साथ, ईमान के साथ मल्टीप्लाई होके उसका सवाब जो है, सवाब के पहाड़ बन जाएंगे, ठीक है। अगर ईमान नहीं था, ईमान ज़ीरो है, तो क़यामत के दिन ये जितने भी आमाल हैं, ये इस्लाम के ज़ाहिरी जितने भी आमाल हैं, ये उस ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो होंगे और वो आदमी जहन्नम में चला जाएगा। तो क़यामत के दिन
یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو فیصلہ کریں گے وہ ایمان کی بنیاد پہ کریں گے۔ ایمان کو جیسے یہاں پہ اسلام سامنے ہے نا اور ایمان اندر چھپا ہوا ہے، تو وہاں پہ ایمان سامنے ہوگا اور اسلام جو ہے وہ پیچھے ہوگا، بیک ہینڈ پہ ہوگا۔ تو ایمان کی بنیاد پہ فیصلے کیے جائیں گے۔ تو اس آیت میں یہ بات کہی گئی تھی کہ یا ولا تقولوا لمن القى الیکم السلام لست مؤمنا، کہ جو کوئی تمہیں سلام کہے، تم اسے مت کہو کہ تم مومن نہیں ہو۔ ٹھیک ہے، ایک اور جگہ پہ یہ کہا گیا نا کہ کسی ایسے آدمی کو قتل نہ کرو کہ جو کہے کہ میرا رب اللہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو قتل نہ کرو۔ ایمان اور اسلام میں فرق، ایک اس کا جو خلاصہ ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ ایمان کیا ہے؟ اقرار باللسان، یعنی ظاہری چیز ہے، سر جھکا لینا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سر جھکا لینا، اور یہ ظاہری چیز ہوتی ہے۔ ایمان، ایمان تصدیق بالقلب، یہ اس چیز کا تعلق دل سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پختہ یقین کا نام ہے، اور اس کا تعلق باطن سے ہے۔ دنیا میں مسلمان ہونے کا انحصار اسلام پہ ہے، ظاہری اعمال پہ ہے، اور آخرت میں جو کامیابی کا انحصار ہے وہ ایمان پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایمان کو دیکھا جائے گا، ایمان اگر ہے تو اسلام اس کے ساتھ ملٹی پلائی ہو کے وہ ہمارے درجات بلند کرے گا، ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ اگر ایمان زیرو ہے تو اس کے ساتھ جس چیز کو بھی ملٹی پلائی کریں گے وہ زیرو ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہجرت کی اہمیت کو بیان کیا گیا، اس میں قصر نماز کا حکم اسی صورت میں ہے، قصر نماز پڑھنے کا۔ صلاۃ الخوف کا ذکر بھی ہے اسی صورت میں، خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے، جنگ کی حالت میں، اس کا بھی ذکر موجود ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کا ہم سے تعلق بہت کم پڑتا ہے، اس لیے میں اس کو زیادہ بیان نہیں کر رہا، لیکن یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ نماز کسی حالت میں بھی چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی تو وہ تلواروں کے سائے میں نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی۔ غزوہ بدر کے اندر، غزوہ احد کے اندر نماز چھوڑنے کی اجازت ہوتی، اگر کسی صورت میں، کسی مجبوری کی صورت میں۔ ہمارے ہاں تو مہمان آ جائیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہیں سفر میں نکل جائیں ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہیں آفس ورک میں مصروف ہوں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں، ہم کہیں شاپنگ میں مصروف ہوں تو ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوف کی حالت میں بھی، جنگ کی حالت میں بھی، جب تلواریں چمک رہی ہوں اور جب خون کی ندیاں بہہ رہی ہوں، تو اس صورت میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، نماز تم نے پڑھنی ہے، ایسا کرو کہ تم میں سے ایک گروہ نماز پڑھے، ایک رکعت ادا کرے، تو دوسرا گروہ پہرا دے کہ کہیں دشمن حملہ نہ کر دے۔ تو جب ایک رکعت پوری ہو جائے تو یہ جو جو نماز پڑھ رہے تھے یہ پیچھے ہو جائیں، اور جو پہرا دے رہے تھے وہ آگے آ جائیں اور دوسری رکعت وہ ادا کریں۔ تو اس طرح نماز پڑھ لو، لیکن نماز چھوڑنے کی کسی صورت بھی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بتایا گیا کہ نماز جو ہے اس کو پڑھنے کے اوقات مقرر ہیں، ان اوقات سے پہلے اور نماز ادا نہیں کرنی چاہیے۔ فجر کا وقت سے پہلے فجر کی نماز نہیں ہو سکتی، ظہر سے پہلے ظہر کی نہیں ہو سکتی، عصر سے پہلے عصر کی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح ہر نماز کا وقت مقرر ہے، اس سے پہلے وہ نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ اجماع امت کسے کہتے ہیں؟ امت کا اجماع کسے کہتے ہیں؟ جس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک پوائنٹ پہ، ایک مسئلے پہ جمع ہو گئے، ان سب نے اتفاق کر لیا کہ یہ اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا، اسے اجماع کہا جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، یہ آپ کو زندگی میں کسی موقع پہ ضرور کام دے گی کہ جو اجماع امت کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جس مسئلے پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ہے کہ میری امت کسی گمراہی پہ اکٹھی نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت جس بات پہ اکٹھی ہو جائے گی وہ گمراہی نہیں ہوگی۔ تو بعض معاملات ایسے ہیں جو نبوی دور میں پیش نہیں آئے تھے، لیکن صحابہ اس پہ جمع ہو گئے، اس پہ اکٹھے ہو گئے، اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باتیں تھیں وہ حق تھیں۔ اسی لیے اجماع امت کو شریعت کا ماخذ کہا گیا ہے، شریعت کا ماخذ ہے اجماع امت، حجت اس کو کہا گیا ہے۔ تو میں آپ کو کچھ دو تین مثالیں ایسی دیتا ہوں کہ ایک آپ دیکھیں کہ جو جمعے کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا جمعے کے دن دو اذانیں ہوتی ہیں، یہ آپ کو کوئی بھی سنت سے، سنت نبوی سے
عہد نبوی سے اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جمعے کی دو اذانیں ہوا کرتی تھی، ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی ایک ہی اذان ہوتی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو شروع کیا کہ جمعے کے دن دو اذانیں دی جائیں۔ وجہ کیا تھی کہ ایک اذان جب اذان ایک اذان ہو تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جمعے کا وقت ہوا جا رہا ہے، وہ تیاری کرنا شروع کر دیں اور مسجد کی طرف آ جائیں، اور جب پھر دوسری اذان دی جائے تو لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب جمعے کی نماز کھڑی ہونے والی ہے، اب خطبہ دیا جانے لگا ہے، تو وہ جلدی جلدی مسجد میں پہنچ جائیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ دو اذانیں شروع ہوئیں اور کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، سارے صحابہ اس پہ متفق ہو گئے اور اس پہ عمل شروع ہو گیا، تو یہ اجماع تھا۔ ایک اور مثال اس کی آپ دیکھ لیں، تراویح، نماز تراویح کی جو مثال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا۔ روایات میں زیادہ سے زیادہ یہی ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان مبارک میں 2 یا 3 مرتبہ، 2 یا 3 سال ایسا ہوا کہ آپ نے نماز تراویح ادا کی، اور اس سے زیادہ کی سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، اور وہ بھی شاید یہ 20 رکعت تراویح اس میں موجود نہیں ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ 20 تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کرنا، یہ سب لوگوں کو اس پہ اکٹھا کیا، لوگوں سے مشورہ کیا اور کہا کہ یوں کیا جانا چاہیے کہ 20 تراویح ادا کی جائیں اور وہ جماعت کے ساتھ ادا کی جائیں، تو سارے صحابہ اس پہ متفق ہوئے، کسی نے اعتراض نہیں کیا، تو یہ اجماع امت بن گیا، اور یہ اب دلیل ہے، یہ حجت ہے۔ جو کوئی اس کے خلاف عمل کرتا ہے وہ اجماع امت کے خلاف جاتا ہے۔ تو یہ اجماع امت کا مطلب ہے، اس کو ذرا تفصیل سے میں نے اس لیے بیان کیا کہ یہ آپ کو کسی نہ کسی موقع پہ یہ بات کام دے سکتی ہے۔ خواتین کے کچھ اور حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ یتیم لڑکیوں سے ان کی اس نیت سے نکاح مت کرو کہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، تو مہر بھی دینا نہیں پڑے گا، اور ان کا جو مال ہے وہ بھی ہم ہڑپ کر لیں گے۔ اس نیت سے یتیم لڑکیوں سے نکاح مت کرو۔ جو عورت شوہر سے عدم توجہی محسوس کرے تو وہ اپنا گھر بچانے کے لیے حقوق سے دستبردار ہو سکتی ہے، یعنی اگر شوہر اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا، تو وہ اپنا مہر، اپنی جو مال ہے وہ دے کے اپنا گھر بچا لے۔ تو یہ عورت کو مشورہ دیا گیا ہے، یہ حکم نہیں ہے، یہ آپ یاد رکھیں، یہ حکم نہیں ہے، یہ عورت کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ یہ قربانی دے کہ وہ اپنا گھر بچانے کے لیے، خاندان بچانے کے لیے، وہ اپنے حقوق سے دستبردار ہو۔ ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان یہ عدل قائم کرنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو عدل قائم کرنے کا یہاں پہ ذکر ہے کہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ عدل دل کا معاملہ، یہ دل کا معاملہ ہے، یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہارا جو دلی لگاؤ ہے وہ بھی، اگر تمہاری ایک سے زیادہ بیویاں ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے، اور یہ تمہارے بس کی بھی بات نہیں ہے کہ تمہارا دلی لگاؤ بھی چاروں کے ساتھ ایک جیسا ہو سکتا ہے کہ کسی ایک طرف تمہارا ملان زیادہ ہو سکتا ہے کسی ایک طرف کم ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، یہ جو دل کا معاملہ ہے یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک معاملہ ہے نان نفقہ دینے کا، جہاں تک معاملہ ہے تمہیں خرچہ پانی دینے کا، تمہیں گھر بار دینے کا، تمہیں کھانا راشن وغیرہ دینے کا، تمہیں مال دینے کا، پیسے دینے کا، وہ وہ تو بالکل برابر تقسیم ہوگا، لیکن جو دل کا معاملہ ہے اس میں اختیار نہیں ہے کسی کو کہ وہ بھی سب پہ برابر ہو۔ ناپ تول میں آنے والے تمام امور بیویوں میں یکسانیت میں تقسیم ہوں گے، باقی جو دل کا معاملہ ہے وہ الگ ہے۔ تو اگر میاں بیوی کے درمیان موافقت نہ ہو تو علیحدگی ہی بہتر ہے، یہ بھی ان آیات میں یہ کہا گیا ہے۔ تو ٹائم کافی ہو گیا ہے، آج میں نے آپ کا فالتو ٹائم لیا ہے، یہیں پہ ہم بس کرتے ہیں۔ تو ایک بات اور طلاق کے بارے میں
तो उस दूसरे पारे में भी इसका जिक्र आया था। तो लेकिन मैंने जैसे पहले भी कहा कि मसाइल को हम ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, लेकिन वो अमूर जिनकी ज़रूरत पड़ती है इस माशरे में, इस आजकल हमारे ज़माने में, उनका मैं ज़रा सा जिक्र कर देता हूँ। जैसे वरासत का मैंने जिक्र किया कि औरतों को अपना हिस्सा लाजमी लेना चाहिए, चाहे वो बाद में वापस कर दें अपने भाइयों को, वापस कर दें, लेकिन एक दफ़ा लें ज़रूर, ताकि ये पता चल जाए कि वो औरत मजबूरी से नहीं छोड़ रही। ठीक है, दिल तो कर रहा है लेने का, लेकिन लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे कि भाइयों से हिस्सा ले रही है, इसलिए चलो ये कह देती हूँ कि मैंने उनको वाप तोहफा दे दिया। तो इस चीज़ से बचने के लिए, इस ये रिवाज कायम करने के लिए कि औरतों को हिस्सा दिया जाए, वो हिस्सा ज़रूर लें। और दूसरा, ये तलाक के बारे में ये कहा गया है कुरान में कि अगर बीवी, मियाँ और बीवी के दरमियान तल्लुकात सही नहीं रहते, वो मुवाफकत नहीं होती, मुताबिकत नहीं होती, तो उनको इलाहिदगी बेहतर है। अल्लाह ताला ने तलाक की ये ऑप्शन रखी है, ये कोई बुरी बात नहीं है, ये बात जहन में रखनी चाहिए। और तलाक देने के भी अल्लाह ताला ने अखलाकियात बयान की हैं कुरान के अंदर, और बहुत एहसन तरीके से। हमारे यहाँ जो जिसको तलाक दी जाती है बहुत बुरे तरीके से दी जाती है, और उसको घर से यूं निकाला जाता है जैसे कि किसी दुश्मन को घर से निकाला जाता है। तो अगर तलाक की नौबत आए भी, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, पसंदीदा चीज़ नहीं है, लेकिन नापसंदीदा सही लेकिन जायज़ चीज़ है। और इसको देने के तरीके अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं कि जब किसी को तलाक दी जाए तो उसका हक उसका उससे वापस ना लिया जाए, उसको जो तहफ़ दिए हैं वो उससे वापस ना लिए जाएं। उसको अगर अगर उसके बच्चे छोटे हैं, दूध पीते बच्चे हैं, तो उसे हक है कि वो उनको दूध पिलाए। तो इस तरह के मामलात बयान किए गए, बहुत ही एहसन तरीके से उसे रुखसत किया जाए अपने घर से। तो ये भी हमारे यहाँ इसका बहुत गलत तरीक़ाकार होता है तलाक देने का। जहाँ पे भी ये मामला पेश आता है, बहुत ही अफसोसनाक और दर्दनाक मामला होता है। तो मेरी बात यहाँ तक थी। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। एक दो मैं आपके माइक अनम्यूट करता हूँ, और चैट में भी अगर आप पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं। जी मरियम इमरान, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये मुझे ये पूछना था कि ये जो है होते हैं कादियानी, ये भी नमाज वगैरह पढ़ते हैं और कुरान पाक भी पढ़ते हैं और पर्दा वगैरह भी इनकी औरतें करती हैं। तो फिर हमें कैसे पता लगेगा कि ये इनके कादियानी है? देखें, इनके लिए ये कानूनी तौर पे भी जायज़ नहीं है, ये मुनाफकत करते हैं। ठीक है, जैसे हमने आपको बताया ना, कोई भी कादियानी हो, कोई ईसाई हो, यहूदी हो, वो हमारे दरमियान में आके नमाज पढ़ना शुरू कर दे, पर्दा करना शुरू कर दे, तस्बीह हाथ में उठा ले, तो हम तो उसे मुसलमान ही समझेंगे। ठीक है, लेकिन उसके लिए तो ये जायज़ नहीं था ना ऐसा करे, और हमारे बस की भी बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक मुमकिन हो, जिन मुआशरों में कादियानी नहीं है, मतलब जिस एरिए में, जैसे हमारे यहाँ एरिए में कादियानी नहीं है, मैंने अभी तक किसी कादियानी को नहीं देखा, तो यहाँ पे तो मामला और है। लेकिन बाज़ सोसाइटीज़ ऐसी हैं, बाज़ शहर ऐसे हैं, बाज़ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे कादियानी बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, और तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। और इन तो उस उन इलाकों में लोगों को चाहिए कि उनसे, जैसे मिसाल के तौर पे निकाह का मामला हो, तो छानबीन करें, जिससे किससे निकाह किया जा रहा है। जो रिलेटिव्स वगैरह होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, उनका तो पता होता है, लेकिन अगर आउट ऑफ फैमिली अगर कोई निकाह हो रहा है तो उसकी छानबीन की जानी चाहिए। ऐसे इलाकों में कई ऐसे केस पकड़े गए हैं कि वो, आजकल यूं भी होता है कि लोगों को आउट ऑफ कंट्री लड़का रह रहा है, उसके रिश्ते दिए जाते हैं, तो वो बड़ी अच्छी तनख्वाह, बड़ी अच्छी सैलरी होती है उस लड़के की, और यहाँ के पाकिस्तान की मुसलमान लड़कियों के रिश्ते तलाश किए जाते हैं, और फिर कादियानियों से उसका निकाह हो जाता है, और फिर बाद में जाके पता चलता है कि वो कादियानी है। तो बाज़ दफ़ा पता नहीं भी चलता और पूरे ख़ानदान को कादियानी बना लेते हैं। तो ये आपने बात सही कही है कि इस तरह के मामलात पेश आते हैं, तो हमें पता नहीं चल सकता। बस यह है कि जिन जिन इलाकों में शक और शुबा हो, उनमें एहतियात की जाए,
एहतियात बरती जाए। बाकी हम किसी का दिल खोल के देख नहीं सकते कि वो कौन है क्या है। और कोई सवाल किसी का? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अच्छा सर, एक सवाल ये था कि जब कोई औरत या लड़की खुला लेती है या तलाक का मुतालबा करती है, तो जो उसको महर दिया गया है या गिफ्ट में हमारे माशरे में जो जहेज जो जेवर वगैरह दिए जाते हैं, ये शरई लिहाज से ये वापस लिया जा सकता है? नहीं, इसका तो कुरान में वाज़े हुक्म आया है मेरे ख्याल में। मैंने अभी भी तज़किरा किया था कि महर और तहाइफ जो औरत को दिए गए हैं वो उसका हक है, वो उससे वापस नहीं लिया जाए। वला वो तो तखुदुहुन्ना। सर तलाक की सूरत में जी हो, जी। हम्म। तलाक की सूरत में हो गया ना, जैसे वो खुद डिमांड करे, वो तलाक की डिमांड करे कि मुझे छोड़ दो, या वो अदालत में जाके खुला ले, तो उसे शरई लिहाज से जो उसको जेवर या कोई गिफ्ट या मेहर की वापसी का मुतालबा किया जा सकता? ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा। मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है कि अगर कोई ये अलग से मसला है तो मैं देख के आपको कंफर्म करके बता दूंगा। ठीक हो गया सर, थैंक यू सर। जी, एक चैट में क्वेश्चन आया है कि कुछ लोग अपनी बेटियों और बहनों की शादी करते वक्त जहेज की सूरत में जो रकम खर्च करते हैं तो कहते हैं कि हमने लड़की को विरासत में हिस्सा अदा कर दिया। तो क्या ये अमल ठीक है? इसके बारे में भी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये भी मैं किसी से पूछ के कंफर्म करके ये आपको बता दूंगा। ठीक है जी, और कोई इसके अलावा? चलें ठीक है, इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।